बैक टू माय चैनल स्टेप अहेड। मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि और ये है क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। सो इस पार्ट में हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। फर्स्ट अमंग देम इज जीन। सो जीन इज बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, why it is known as the basic unit of heredity? Because it controls the characters that are to be transferred from the one generation to another. Okay, so it is known as basic unit of heredity. Let me close my pic so that you just focus on the concept rather than pic. That's more important, I think. So let's start with it. So it is a unit responsible for the transmission and expression of the traits. The term gene is given by Johansen. Okay. Modern working definition: a locatable region of a genomic sequence corresponding to a unit of inheritance. मीन्स allocatable region, जो रीजन हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द जीनोमिकल सीक्वेंस। जीनोमिकल मीन जो जीन को एक्सप्रेस करे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ द सेकेंड वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कैरेक्टर्स। Now we have talked about genes. Let's talk about characters. So characters are like height, color, shape. ठीक है, we can call this as morphology character. Morphology means appearance. So as you observe, all these characters are related to the appearance in one way or the other. So we call them as a morphology characters. ठीक है, next we are going to talk about the traits. Now in the traits, the characters are further distinguished. For example, that height. Let us talk about height. It is further distinguished. It can be long, it can be short. So the height is further distinguished into the two characteristics. Now if I talk about shape, shape can be further distinguished, like shape can be round, wrinkled, square, all of them. Basically I can say that the shape is further distinguished. Now if I talk about color, you can see many colors in my page even. So like this, the color are also distinguishable. You can write them orange, that you are finding here. You can write them yellow, blue, red, green. There are many colors available. Yellow is here, red is here, blue is here. I forgot to draw the green. Let us draw the green too. The green is here. So the colors are further distinguishable. Now, so basically we can write down the traits as वेरिएशन इन कैरेक्टर के बीच की वेरिएशन को हम ट्रेट्स कहते हैं. वेरिएशन इन कैरेक्टर्स is basically referred to as traits. Hope clear to you? Very much clear. I have written it out in a very simple language so that it must be clear to you. Now next we are going to talk about allele. बहुत बड़ा लिखा था, sorry for that.
smaller than pen size. Now it will be clear. So we are going to talk about alleles. Okay. So what do you mean by alleles? Or so a pair of the contrasting character. It is a pair of contrasting characters. मैं आपको इस सारा कुछ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी. 2 सेकेंड की वेट कर लो. टर्म एलीन is given by Bateson. Okay. Now, the example we take as T and small t, big Y and small y. What are they? I'm going to explain it to you in further 2 to 3 minutes. Just wait for a while. I'm going to explain all of that to you. So I'm going to talk about gene locus. Okay. Now what do you mean by locus? First of all, let's talk about that. What do you mean by locus? So gene locus. We are going to talk about this now. So the portion or the region of the chromosome representing a single gene. Locus means one portion or region of 1 second. Wait. Chromosome representing single gene is called gene locus. Okay. Now the next topic that we are going to talk about, homozygous and heterozygous. Homo means same. Homo का मान term coined by wait. Homo means same. ठीक है. So homozygous क्या होगा? Organism having 2 similar genes or alleles or alleles, okay, for a particular character. ठीक है. Example, big T or small t. What are they? I'm going to explain that to you in very short point. Now just try to understand. मतलब नाम समझ लो, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लो, क्या होता है कैसे होता है वो सब समझा देती हूँ. अब मैं आप खुद मुझे बताओगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि अब जो कर हेटेरो साइकल्स. सो होमो का मतलब सेम, तो हेटेरो का मतलब होगा हेटेरो means different. Let me just write it on in another pen. Wait. So hetero means different. So organism containing 2 different alleles of pair alleles of pairing
करना है टू डिफरेंट एलील फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर. Homologous chromosome should be homologous. होमो मीन्स सेम तरह के दिखने वाले क्रोमोसोम्स होने चाहिए, बट उनके अंदर जीन्स अलग अलग प्रेजेंट हों. ठीक है, क्या होता है ये? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन लिटिल ब्लाइंड. ओके, अब हम बात करेंगे हेमिजाइगस. ठीक है, सारे टर्म्स समझा देते हैं. इन टर्म के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक आइडिया दिया था, कौन से टर्म किसके लिए यूज़ होते हैं, वो भी बात करें. सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट on which we are going to talk about now would be of, wait, let me choose the pen first of all. We have talked about the homozygous, heterozygous. Now we are going to talk about hemizygous. Hemi means half. ठीक है, hemi means half. So in this case, only one allele of a pair, ठीक है, is present as in linkage as a result of deletion. एक एलील की यहाँ पे क्या हो गया? डिलीटेशन. एलील मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में क्या होता है. जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख कर आओ, आपको ज़्यादा अच्छे से इधर तक समझ आ जाएगा सारा कुछ. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल लेट अस टेक अबाउट इट. ह्यूमन मेल आर हेमिजाइगस. They have X and Y chromosome. अगर देखा जाए वुमेन्स के पास तो एक्स एक्स होता है, उनके पास वाई एक्स्ट्रा है ना. उनके पास बेसिकली वाई क्रोमोसोम ही नहीं होता, उनके पास एक क्रोमोसोम एम्प्टी होता है. दे ओनली हैव एक्स क्रोमोसोम, सिंगल एक्स. तो इस एक्स को कंप्लीट करने के लिए वी पुट वाइट सॉरी वाई इन द प्लेस. Clear? Now we are going to talk about dominant allele. So, dominant allele. So they are able to express themselves whether homozygous और हेटेरोजाइगस. दोनों कंडीशन में ये अपने आप को करेंगे ही रिप्रेजेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिसेसिव, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस itself in presence of dominant. अगर डोमिनेंट जीन आ गए तो कहेगा नहीं पापा नहीं, मैं नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा. ओके, दे ओनली एक्सप्रेस व्हेन होमोजाइगस, मतलब दोनों स्मॉल टी है. स्मॉल अल्फाबेट इज ऑलवेज यूज फॉर रिसेसिव, बिगर इज ऑलवेज यूज फॉर डोमिनेंट. इतना क्लियर है? अगर है तो वेल एंड गुड, ये सक्सीड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइल्ड एलील्स. ठीक है, वाइल्ड एलील्स आर वाइडली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन. ठीक है, रिसेसिव एलील्स आर लेस कॉमन.
ठीक है, वाइल्ड कौन सी है? डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है? वाइल्ड नहीं है, ये म्यूटेशंस के थ्रू आई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीनोटाइपिक की। जीनोटाइप क्या होता है? जीनो मीन्स जीन। ठीक है, इट इज बेसिकली रेफर्स टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, it's a gene complement or the genetic constitution of the individual with the regard of one or more characteristic aspect. If I talk about phenotype, phenotype is basically physical makeup, बेसिकली कौन से करेक्टर से वो बना है। ठीक है, नाउ बाकी सब के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब जितना भी मैंने कराया ना उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ना मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जितना भी हमने पढ़ा उसको हम समझ लेते हैं। राइट, so let us explain all of you that I have provided you with, कहीं मैंने आपको नहीं बताई टर्मिनोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज भी मैं सारे आपको इसमें बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं करेक्टर की। आई एम टेकिंग 2 करेक्टर्स, let me do it with some another color. Wait, let me take this color for writing. No, it's not so visible. Wait for a bit. Let me take white one. With the hope that it will. So let's take character. I'm taking character as black and blue. I'm writing black with the B and blue with the small b. What does it mean? It means that black is reducing it using this pen, and let's just mean that this black is dominant and blue is recessive. Dominant is always written in the capital letter, whereas recessive is always written in the smaller letter. So black is dominant here, blue is recessive here. Now let us talk about the cross between them. हम कभी भी इन्हें अकेला नहीं रखते, we write it always like this. Okay, now we are going to talk about, I'm taking the pen, cross between them. So इन दोनों को हम सीधा एक भी लिख सकते हैं, लेकिन टेप ब्लैक पेन अगेन एक भी लिख सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठे करके हम एक स्मॉल भी लिख सकते हैं। नाउ इफ आई क्रॉस देम इट वुड बी बिग बी एंड स्मॉल बी. दिस इज योर F1 generation. Now I don't taught you about F1 generation. हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। F1 जनरेशन क्या होता है? इट इज़ फर्स्ट बीटल जनरेशन. ठीक है, इट इज़ द जनरेशन ऑफ द हाइब्रिड produced from the cross between two genetically different individuals called parent. ठीक है, and ठीक है, अब अगर हम देखें इन दोनों केसेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ वर सिमिलर. Let me take another pen. Can't you see both were the similar? अगर दोनों बड़े हैं तो दोनों बड़े, दोनों छोटे हैं तो दोनों छोटे. इस तरीके के हम
को हम क्या कहते हैं पहले? तो अगर या दोनों बड़े या दोनों छोटे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोई अच्छा सा कलर का पेन नहीं है यार, लेट मी सी। है ये, ढूंढना पड़ेगा मेरे बेटा। आप इस वाले को हम कहते हैं या दोनों बड़े या दोनों छोटे हैं, उसे हम कहते हैं होमोलोगस। ठीक है, और ये दोनों क्या है हमारे पास? एलील्स। एलील्स इज द सेट ऑफ द जीन। एक जीन ये, एक जीन बी, एक जीन ये वाला भी, ये दोनों मिलाकर एक क्या बन गई? एलील। क्लियर हुआ है? ये वैसे ये भी एक एलील है, ये भी एक एलील है। अब लेकिन ये एलील तो है, बट विद इट इज हेटेरोजाइगस। देख सकते हो 2 डिफरेंट कैरेक्टर है, एक ब्लैक आई है, एक ब्राउन आई है, दोनों इकट्ठे एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस वे को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। अब आप इसमें बताओ इसकी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। इफ आई टॉक अबाउट फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? जीनोटाइप तो 1 नहीं है, बी है, ये 1 है। अब ये बी की फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? इट वुड बी ब्लैक। तो जो चाइल्ड होगा दैट वुड हैव ब्लैक आइज। व्हाई इट वुड हैव ब्लैक आइज? बिकॉज ब्लैक इज डोमिनेंट 1. Dominant is 1 that is able to express itself in the presence of recessive 1. इस वे में आपको ऑलमोस्ट ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर। एक और टर्मिनोलॉजी जिसमें एडेड थी, जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, दैट इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। When we take cross of only one character, we call it as monohybrid cross. अब character तो यहाँ पे 1 नहीं है, that is eyes. We are talking about eyes. ओके, कैरेक्टर तो 1 ही है ना, eyes. तो इसमें आप सोच सकते हो कितनी सारी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी से इकट्ठे बताई हैं। अब इसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों से मिलके दोनों डिफरेंट कैरेक्टर। पहले दे वर प्योर बट नाउ दे वर हाइब्रिड। इन दोनों को हम मिला के प्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों प्योर हैं। अगर बड़ा ब्लैक है तो बड़े ब्लैक है दोनों, स्मॉल ब्लैक है तो स्मॉल ब्लैक है, मतलब प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लू है। पर जो हाइब्रिड आएगा that has the black eyes but it is hybrid, means it has some character of the blue that are present but that are not able to represent themselves. वो present है पर वो पहली F1 जनरेशन में वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन वो F2 जनरेशन में करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? कितने सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने यहीं पे बात की है। Let me list down all of them for you. First of all, we talked about the character. What are the character? Here I take it as I. If I have taken one character, it means it is monohybrid. One character cross, एक तरह की हाइब्रिड ही आई। ठीक है, now then we talk about alleles. You clear with the alleles? Alleles क्या है? करेक्टर की फर्दर डिवीजन। तो पहला करेक्टर आई लिया, आई की फर्दर डिवीजन हुई, दैट इज इट मे बी ब्लैक, इट मे बी ब्लू। वो प्योर भी हो सकती है, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, हाइब्रिड भी हो सकती है और होमोजाइगस भी हो सकती है। ठीक है ना? कंफ्यूज हो रहे हो? ध्यान से सुनो। We take character is eyes, further divided to black and blue. Now it can be homozygous, means both big, both small. We also call homozygous as pure. It can also be heterozygous, small or big.
both would be present in there. We also called it as hybrid. Then after the allele, I talk about homozygous, heterozygous, pure, hybrid. Then I talk about dominant, recessive. Then we talk about F1 generation. We talk about phenotype. We talk about genotype. So all of them we have talked about it this much page. Hope it is very much clear to you. If yes, give a thumbs up. Now I am going to teach you about F2 generation क्रॉस. डायहाइब्रिड ना हम करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है. पहले ये कर लेते हैं. अब F2 जनरेशन हमने मान लो ले लिया, जो पहले हमारे आए थे दैट बिग ब्लू, स्मॉल ब्लू into big blue and small blue. Now first of all, these would be its genes. What do you mean by genes? इसमें हमने जीन के बारे में पढ़ लिया. What are the genes? They are the representative of the characters basically. ठीक है, locus वगैरह भी सबको समझा दूंगी मैं आपको भी. देखना भी इतना देख. Now to solve it, we draw a square. We call this square as Punnett square. B, small b, big B, small b. We write the characters over here and we call this square as Punnett square. So it is one of the important term that I don't told you. I thought told it to you when I am going to explain the method to you. Okay, it is check border used to find the result of the cross of two generation. इससे हमें क्या पता चलती है? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो. अब बड़े बी को हमने क्रॉस किया तो दोनों बिग बी स्मॉल बी को किया तो ये आया, बिग बी स्मॉल बी को किया तो ये आया. हमने हमेशा बिग वाला बड़ा पहले लिखना. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बिग है, इसमें बिग है, इसमें बिग है. लेट मी टेक अनदर वन. इसमें बिग है, ये भी नहीं दिखेगा ना, कलरफुल है. लेट मी टेक वाइट वन. इट विल बी क्लियरली विजिबल. So let me take this one and this one. You can see all three of them are having big P inside them. All of them are having big P inside them. So all three would have which character? Black. That is dominant. अब पहले हम इसको ना अलग अलग लिख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर ले. जिसको इसमें कन्फ्यूजन है उसको ऐसे साथ समझाओ. अब ध्यान से देखो, इन तीनों में बिग बी है. उससे पहले तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि ये वाला कौन सा है. इट इज होमोजाइगस. These both are heterozygous. This is again homozygous. Now big B is dominant, small b is recessive. These two big B are dominant and biggest two small b are recessive. Clear with this much? Now for more understanding, let's see something. These three have the dominant gene. So now the characteristic of dominant gene is the one कि अगर वो होमोलोगस में प्रेजेंट हो या हेटेरोलोगस में प्रेजेंट हो, वो अपने आप को शो
करेंगे ही करेंगे। तो इन तीनों केसेस में द जीन वुड बी एबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को शो करता है, तो इट वुड हैव ब्लैक आई, द चाइल्ड हियर वुड हैव ब्लैक आई। अब इसमें देखो दोनों रिसेसिव है, डोमिनेंट आई ने तो उसके कैरेक्टर को शो करने की बात ही नहीं आई। सो इसमें क्या होगा हमारे पास ब्लू आइज। नाउ आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। सो इफ आई टॉक अबाउट phenotypic रेशियो, ब्लैक है और ब्लू है, लेकिन ब्लैक का 3 नंबर, blue is 1 in number, so ratio will be 3:1. Clear? Pretty much clear to all of you? Okay. इसे हमने एक बात शो की, एक बात हमने देखी, F1 जनरेशन के एंड में हमारे पास बने थे बिग बी और स्मॉल बी। इसमें आइस कलर आ रहा था ब्लैक। फिर हमें इससे पता चल गया शायद डोमिनेंट ने F1 जनरेशन में अपने आपको शो किया, पर ऐसा नहीं था कि बी कम्प्लीटली डिसअपेयर हो। बी ने F2 जनरेशन में अपने आप को शो किया। अब ये एक लॉ के अंदर आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक बात समझ ली कि बी ने भी अपने आप को शो इसमें किया, पर कब? अगर वो होमोजाइगस है, दोनों स्मॉल बी है, ओनली देन द बी विल बी एबल टू शो अप इटसेल्फ। क्लियर दिस मच टू ऑल ऑफ यू? नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली फिनोटाइपिक रेशियो की। अगर अब हम इसमें जीनोटाइपिक की बात करें, तो जीन इसमें कौन से हैं? या तो बिग बी स्मॉल बी है, सॉरी बिग बी है, बिग बी स्मॉल बी है, बिग बी स्मॉल बी और बिग बी है। अब ये कितना? 1 प्रेजेंट है, इन दोनों ये 2 प्रेजेंट है, ये 1 प्रेजेंट है, तो दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। तो अब हमने जीन्स की बात की। ये पता ना आपको, ये सारे क्या है? एक तो ऑल ऑफ देम आर alleles. Okay, next important terms that I'm going to talk about, that will be the last for this lecture. So let's talk